Okay, so here you see these are the how do plants prepare their food. So you can see these are the things that is required by the plant to make their food. What is there? Water is required, carbon dioxide is required, sunlight is required, minerals, okay, and chlorophyll. So from where they are getting all these things, you see in this diagram, you'll get a clear idea about it, from where they are getting these different sources. The sunlight, you see, there is a direct, I mean, during the daytime, that is why the plant prepare their food only during the daytime, because only during the daytime they are getting the sunlight. So the sunlight, they fall on the leaves. Okay, so the site for the preparation of the food, okay, कौन से जगह में, प्लांट के कौन से हिस्से में उनका फूड बनता है, दैट इज द लीव्स. सो दिस लीव इज कॉल्ड एज द साइट, site of photosynthesis. This is known as the site of photosynthesis. Okay, site of photosynthesis. क्योंकि यहीं पे they are making their food, right? So in the leaves, what is there? You see, what are the different things that we require? You can see over here. देखिए उनको जो raw material, एक तो sunlight, the roots, okay, from the roots, the soil has water content, soil में पानी रहता है, और minerals, water and minerals are there. So that water and mineral, through the roots, they are being sucked by the plant and they are reaching the leaves. Okay, the water and the minerals are reaching the leaves through the roots. Okay, from the roots they are going to the leaves. Okay, and oxygen is available in the atmosphere, so that is being directly taken by the leaves. How that is taken, there is a process for that, I'll explain you. Okay, what is the process of taking the oxygen, that will come later, so we'll discuss about it. Okay, so you see this diagram is giving an idea how the food is prepared by the leaves. Okay, now you see here, where is the food made in the plants? So leaves is also known as the food factories. So leaf is very important in the preparation of the food. They are known as the food factories. Okay, खाना बनाने के लिए जो कारखाना होता है, वो कारखाना क्या है? लीव्स है, of the plants, as they are the places where the food is prepared. Different parts of the plants like roots. Okay, but the leaf only is not doing the process, entire process. There are different parts of the plant which are performing some role in the preparation of the food. जैसे कि रूट्स क्या करते हैं? दे आर डूइंग द वर्क ऑफ गैदरिंग द रॉ मटेरियल. जो रॉ मटेरियल चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए? वाटर एंड मिनरल. तो वाटर एंड मिनरल कौन गैदर करता है? द रूट्स आर गैदरिंग water and mineral, okay, from the soil, from the environment, that means from the soil they are taking it and then transfer them to the leaves. तो रूट से उसको उठा के, उसको लेके कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? They are transferring to the leaves. Okay, so then, okay, leaves where the photosynthesis takes place. Next is transportation of water and minerals. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. देखिए बच्चों, प्लांट में दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं. एक टिश्यू का नाम है जाइलम और दूसरे टिश्यू का नाम है फ्लोएम. ओके, मैं बता रहा हूँ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, आई टेल यू. ओके, तो पहले देखिए, ये जो दो टिश्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट में होते हैं. ये एक्चुअली हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं. ओके, जो एक सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम. अभी देखिए रुद्र, आप पूछ रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पर जो फूड है, या फिर सबसे पहले जो पानी है, वाटर एंड मिनरल है, उसको लीव्स तक लेके जाना है कि नहीं जाना है? रूट से लीव्स तक जाने के लिए उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, जिस टिश्यू का नाम है जाइलम. ओके, तो वो टिश्यू कहाँ होता है? इसके, ये जो स्टेम होता है ना, स्टेम के अंदर ये टिश्यूज होते हैं. ओके, तो ये टिश्यूज के थ्रू जाके ये जो वाटर एंड मिनरल रूट से कहाँ जाते हैं? लीव्स में जाते हैं. तो यहाँ की इसके अंदर टिश्यूज है. ओके, तो इन टिश्यूज के थ्रू जाते हैं वो लीव्स में.
Is it clear? They're going to the leaves through these tissues. So that is called transportation. Transportation means the process of carrying, the water and minerals from the root to the stems and to the branches and via, okay, to the leaves via the stems and branches. तो ब्रांच और स्टेम्स के थ्रू वो कहां पर पहुंचती है? लीव्स के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है? ओके, तो फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम के बारे में अब हम लोग अभी सिर्फ फूड प्रिपरेशन को देख रहे हैं। तो वाटर एंड मिनरल को जो टिश्यूज कैरी करती है उसको बोलते हैं जाइलम, ठीक है? और जाइलम में जाके मतलब जब वो लीव्स तक पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद खाना बन जाता है उनका। ओके, द फूड इज प्रिपेयर्ड। ओके, फूड इज नथिंग बट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसे बनता है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी बनने के बाद उस फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, या लीव्स सिर्फ अपने अंदर सिर्फ लीव्स अपने लिए रखते हैं कि बाकी के हिस्सों में भी भेजना पड़ता है खाने को? The food has to be sent to the different parts of the plant, like the stems, like the fruit, okay, buds, okay, then roots. Everywhere the food has to be sent, okay. तो जो भी पार्ट्स में फूड को वापस भेजना होता है बनने के बाद, उसके लिए एक अलग टिश्यू होता है, उस टिश्यू को बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है? तो वाटर एंड मिनरल को लीव्स तक पहुंचाने के लिए जो टिश्यू होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है, उसका नाम है जाइलम। और लीव्स में खाना बनने के बाद उस खाने को प्लांट के अलग अलग हिस्सों में भेजने के लिए जो टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है? अभी वही चीज यहाँ पर दिखाया गया, आप देख सकते हैं। The same thing is shown in this diagram, how the different parts of the plants are performing this work. आप यहाँ पे एरो मार्क देख सकते हैं, है ना? तो ये जो एरो मार्क आप देख रहे हैं, ये किसके लिए है? क्या जा रहा है ऊपर, ऊपर की तरफ? Water and minerals is going upwards and it is going to the leaves, all the leaves. इस लीव में भी जा रहा है। इस लीव को थोड़ा बड़ा इसलिए दिखाया है क्योंकि हम यहाँ पे एक ही लीव के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी देखिए, इसीलिए तो मतलब एक पेड़ में इतने सारे पत्ते होते हैं। इतने सारे पत्ते का काम क्या है? क्योंकि पत्ते में थोड़ा 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 क्या बन रहा है? प्लांट के लिए खाना बन रहा है, ओके। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आ गया, और फोटोसिंथेसिस से क्या बना है? उनका, उनके खाने का नाम क्या है? ग्लूकोज। उनके लिए जो खाना बनता है उसका नाम क्या है? ग्लूकोज, ठीक है? और वो ग्लूकोज को जो स्टोर करके रखते हैं कुछ दिनों के लिए, दे आर स्टोरिंग देयर फूड फॉर सम डेज, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्च, ओके। खाना बनने के बाद तुरंत तो नहीं खाने वाले, उसको कुछ दिन तक स्टोर करके रखेंगे, है ना? ओके, सो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टार्च बोलेंगे, ठीक है? ओके, अब देखिए जो ग्लूकोज बना है, एंड यू नो वन थिंग स्टूडेंट्स, सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, ह्यूमन बींग्स भी जो खाते हैं हम लोग ना, वो पेट के अंदर जब उसका डाइजेशन होता है तो उसके बाद वो क्या बन जाता है? वो भी ग्लूकोज ही बनता है। तो एक्चुअली उनका खाना और हमारा खाना कुछ डिफरेंट नहीं है, ओके। हाँ, हमारा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, उनका रॉ मटेरियल अलग है, हमारा रॉ मटेरियल अलग है, लेकिन जो भी हम खाते हैं अंत में वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ओके। और वो ग्लूकोज भी हमें नहीं चाहिए, उस ग्लूकोज से हमको क्या चाहिए पता है? उस ग्लूकोज से एक केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस से हम इस ग्लूकोज से क्या डिराइव करेंगे? एनर्जी डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे? एनर्जी। तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी को क्या चाहिए? अल्टीमेटली अवर बॉडी वांट्स एनर्जी, सो फॉर दैट ओनली वी आर ईटिंग, राइट? तो हम लोग लोअर क्लासेस में सिंपली हमने पढ़ा है कि व्हाई डू वी ईट फूड? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, राइट? बट नाउ यू विल अंडरस्टैंड इन हायर, एज यू गो इन द हायर क्लासेस, कि वो एनर्जी सीधा नहीं होता है, ओके। वो एनर्जी बनने के लिए देयर आर डिफरेंट प्रोसेस व्हिच हैपेंस, ओके। ओके, फाइन। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कैसे बन रहा है फूड, है ना? अब देखिए, वापस देखिए, ग्लूकोज मूव्स टू द ग्रोइंग बड्स। अभी यहाँ पे जब ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बनने के बाद यहाँ से कुछ एरो, यहाँ इस एरो को देखिए, पर्टिकुलरली मैं जिस एरो को दिखा रहा हूँ, ये दो एरो प्लांट से मतलब लीव्स से बाहर जा रही है। लीव्स अंदर नहीं आ रही है, लीव्स के बाहर जा रही है, ओके, है कि नहीं?
तो ये जो है वो क्या है, वो ग्लूकोज, द ग्लूकोज इज रीचिंग द डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू विच टिश्यूज। ये जो बाहर जाने वाले एरो मार्क्स हैं, ये कौन से टिश्यू होंगे बताइए? तो ये फ्लोएम टिश्यूज है। ओके, ओके नेक्स्ट। So transportation of food and mineral. I hope it is clear to you how the food is being transported, right? Okay. अभी देखिए inhalation of carbon dioxide. Okay, how they are taking the carbon dioxide. So you know that one of the ingredient for the food is carbon dioxide, right? CO2 is one of the ingredient. अभी वो प्लांट तक कैसे पहुंचता है? तो वो डायरेक्टली थ्रू द लीव्स। ओके, वो डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है ना हमारे हवा में, तो वो सीधा हवा से ही उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो लीव्स है वो ले लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं यहाँ पर देखिए, एक लीव के अंदर, नहीं क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल सनलाइट को लेता है। ओके, स्टोमेटा। ओके, सो इट इज बीइंग टेकन बाय द स्टोमेटा। Okay, so the carbon dioxide is taken by the stomata. So what is stomata actually? Stomata are actually tiny pores. Okay, you see here there are tiny holes or pores present in the surface of the leaves called stomata. Okay, तो जो पत्ते होते हैं, पत्ते में छोटे छोटे पोर्स मतलब होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, तो उन होल्स का नाम क्या होता है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोमेटा कैसे दिखता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज द स्टोमेटा। ये जो पूरा जो सेटअप, ये जो पूरा डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए स्टोमेटा। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा जो पोर है, उस पोर को यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है कि वो देखने में कैसे होता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे दो सेल रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द गार्ड सेल। व्हाट वी कॉल दैट, दे आर कॉल्ड एज द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जो होता है वो एक गेट की तरह होता है। ओके, वो खुलता है, बंद होता है। तो वो जब बंद होगा तो वो पोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। जब वो टोटली एकदम पास पास आ जाएंगे ये जो गार्ड सेल्स है, ओके, क्या होगा, यहाँ का जो पोर है, बीच का जो होल है, बहुत छोटा हो जाएगा, ये एकदम बंद हो जाएगा। ओके, तो ऐसे जब होगा तो यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी अंदर नहीं घुस सकता है। ओके, लेकिन जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी तो ये स्वेल हो जाएगा। तो जब ये स्वेल अप हो जाएगा, तो ये स्वेल अप होने के बाद इसके बीच का जो पोर है वो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस पोर के थ्रू लीव्स के अंदर क्या पहुंच सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच सकता है। ओके, और ट्रांसपिरेशन का एक और प्रोसेस है। अभी ये पोर दो दो टाइम मतलब ये खुलता है। ओके, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, और दूसरा है जो प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होता है ना। ओके, जो वाटर की क्वांटिटी कभी ज्यादा हो जाती है प्लांट में। ओके, तो उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ट्रांसपिरेशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आप सवेरे देखते हैं ना कि प्लांट्स के पत्तों में जो ओस की बूंद होती है, आपने देखा ओस की बूंदों को? ओके, तो ओस की बूंद पत्ते में अचानक से आई कहाँ से? बारिश तो हुई नहीं, तो ओस की बूंद कहाँ से आई है? वो बारिश का पानी नहीं है, वो एक्चुअली प्लांट से निकला है, लीफ से, पत्तों से ही वो बाहर निकला है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जैसे देखिए, जो हमारी पेड़ की जड़ें हैं, जड़ें पानी, यहाँ पर पानी के बहुत सारी, आई मीन देयर वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर एटमॉस्फेयर में भेजने का काम भी प्लांट्स ही करती है। ओके, तो बोलते हैं ना हमें ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। हमें ज्यादा पौधे क्यों लगाने चाहिए? ताकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहे। ओके, तो ये जो पानी है ये प्लांट में चली जाती है, और प्लांट को जितना पानी चाहिए अपने लिए उतना पानी वो रख के बाकी का पानी क्या करती है, इन पत्तों के द्वारा वो बाहर एटमॉस्फेयर में भेज देती है। ठीक है, कैसे भेजती है? पहले तो वो पत्ते के ऊपर ही रहती है एज ड्यू ड्रॉप्स।
पत्ते के ऊपर आप सवेरे सवेरे देखते हैं ना, ओके, तो दैट इज द ड्यू ड्रॉप्स, और बाद में ये पानी क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। क्या हो रहा है, एवापोरेट हो जाता है, ओके। आप अभी क्लास 7 में है ना, क्लास 7 की हिंदी में एक लेसन आएगा आपकी, 7 में आता है कि 8 में आता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, पानी की कहानी, पानी की कहानी। तो उस लेसन में आपको, शायद मुझे 7th में कि 8th में, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो इसमें इस प्रोसेस को क्लियरली समझाया गया है, ओके। तो यहाँ पे आपको स्टोमेटा का क्या रोल है आपको समझ में आया, ओके। तो अभी हम स्टोमेटा को पर्टिकुलरली किस लिए स्टोमेटा को यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर लेने के लिए हम स्टोमेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। Okay, so tomato, and also you see there are some chlorophyll molecules also. Okay, देखिए यहाँ पर जो पिगमेंट्स है, ग्रीन कलर पिगमेंट, ये जो ग्रीन कलर की पिगमेंट्स आप देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स हैं, ओके। तो ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, इनका नाम है क्लोरोफिल। इनका नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स का काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, दे आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द, ओके। अभी देखिए प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स इन द लीव्स, ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, इट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट। तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। द क्लोरोफिल not only provides green color to the leaves but also helps in the process of photosynthesis, okay। तो क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन कलर ही प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, helps in the process of photosynthesis। कैसे, क्लोरोफिल कैप्चर्स द सनलाइट, वो सनलाइट को खींचता है अपनी तरफ, ओके, एंड आल्सो विद अदर रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर द फूड इन द लीव्स, ओके। तो लीव्स में खाना प्रिपेयर करने का, फूड प्रिपेयर करने का काम भी क्लोरोफिल करता है। नेक्स्ट, दिस in the daytime in the presence of sunlight, hence it is called as photosynthesis, okay। क्योंकि ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट, ओके। इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटो का मतलब है लाइट, फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब है मेकिंग, making of anything, making anything, that process is called as synthesis, okay। So they are making their food, no, they are making their food. Okay, so the making of food in the presence of light, that is why it is called as photosynthesis, okay। Okay, why is the sun, why sun is called the ultimate source of energy for all living organisms? We know that the plants use solar energy to make their food, okay। तो ultimately sunlight ही is the ultimate source of energy क्यों कहा गया है, ओके, यही हमारे लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, क्योंकि सभी एनर्जी का जो सोर्स है कहीं ना कहीं से वो क्या है, सन ही है। क्योंकि सन से हमको क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है, लाइट एनर्जी मिलता है ना। और इस लाइट एनर्जी से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अगर देखिए सनलाइट नहीं होता तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाते, और अगर प्लांट अपना खाना नहीं बना पाते तो जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ से खाते हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स, ओके, या फिर कोई अदर लिविंग थिंग्स, हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ही खाना मिल रहा है ना। सीधा या फिर ह्यूमन बींग्स हम डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या फिर किसी एनिमल को खाते हैं। तो एनिमल जो है वो तो प्लांट, उसको कहाँ से खाना मिल रहा है, उसको तो प्लांट से ही खाना मिल रहा है ना। अगर प्लांट ही नहीं, अगर प्लांट को ही खाना नहीं मिलता तो प्लांट मर जाते हैं। तो एनिमल्स को खाना नहीं मिलता, और एनिमल्स को खाना नहीं मिलता तो हमें भी खाना नहीं मिलता, ओके। तो अल्टीमेटली जो भी एनर्जी सोर्सेस है, सब एनर्जी सोर्स का मेन सोर्स कौन सा है, लाइट, सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यही इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है।
अभी नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे सेल्स के बारे में बताया गया है। तो सेल्स के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अगर शुरू करेंगे तो काफी लंबा जाएगा। ओके, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं इसी प्रोसेस के नीचे जो फोटोसिंथेसिस का जो अगला हिस्सा है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, so can photosynthesis takes place in the other parts of the plant? Yes, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में ही हो जरूरी नहीं है। अगर प्लांट में कोई और भी हिस्सा है जहां पर ग्रीन पिगमेंट्स और क्लोरोफिल मौजूद है, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो सकता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स, ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स, ओके, जो ग्रीन कलर में हो, कैन ऑल्सो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द एग्जाम्पल, plant in the desert area like cactus do not have leaves, okay, but they still exist because their stems produce फूड फॉर देम। जैसे कैक्टस का प्लांट है, आपने कैक्टस का प्लांट देखा है? ये तो कैक्टस का प्लांट वो लीव नहीं है एक्चुअली, वो स्टेम ही है उनका। ओके, तो स्टेम्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे कांटे होते हैं, ऐसे मेनी थॉर्न्स आर देयर। ओके, तो लेकिन वो पूरा ग्रीन कलर का होता है। तो एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा कैक्टस का जो पार्ट है, ओके, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस, टेकिंग द प्रोसेस, डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, next, why the process of photosynthesis is important? There will be no food if the plant would stop conducting the photosynthesis process. अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो कोई फूड हमको मिलेगा ही नहीं, प्लांट को भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा। The plants take in carbon dioxide and produce oxygen during the process of photosynthesis. Hence, without this process, there is impossible to survive on Earth, as there would be no oxygen. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और किसको रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, और यही ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, वी आर ब्रीथिंग। ओके, तो अगर हमको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो इस अर्थ में सरवाइव करना भी पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? Next, production of oxygen and carbohydrates by the plants. Production of oxygen and carbohydrates by the plant. अभी यहाँ पर देखिए कि this process how it is happening. So I was discussing about how oxygen and carbohydrates are produced in the plant. So for this it takes place through some process. Okay, इसके लिए कुछ process होते हैं। Okay, so here you see, here we have the products, here we have the reactants. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास reactants है, कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। Okay, we need carbon dioxide and we need water, CO2 and H2O. Okay, CO2 and H2O in the presence of sunlight. Okay, सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो सनलाइट हमको थ्रू क्लोरोफिल मिल रहा है हमको, द क्लोरोफिल इज अब्सॉर्बिंग द सनलाइट। इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वही ग्लूकोज है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। याद रखिए, जब भी कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम एक साथ मिल जाए तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट आता है, वो बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट देयर? ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट। ओके, मतलब ये हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये एक्स्ट्रा मतलब ऐसे ही फेंकने की चीज नहीं है, ये बहुत ही जरूरी चीज है। ओके, ये जो बाई प्रोडक्ट है यही फिर से एटमॉस्फेयर में जाता है, इट इज गोइंग टू द एटमॉस्फेयर, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की जरूरत है हमें सांस लेने के लिए, ये वही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था ना कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर जो है ये है इनटेक, ये क्या है? इनटेक है, और ये क्या है? ऑक्सीजन जो है वो बाहर जा रहा है। ओके, सो इट इज
आउटलेट, ओके, इट्स गोइंग आउट। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये प्लांट के अंदर ही रहेगा, ताकि इससे उनको एनर्जी, जो उनको एनर्जी चाहिए, okay, they are fulfilling their energy requirement with the help of the glucose, okay, is it clear? So this is the raw material, this is the raw material. In the presence of sunlight they prepare glucose and oxygen, okay. Now इस चीज को केमिकल फॉर्मूला में अगर लिखेंगे तो CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, okay. अभी जो C6H12O6 है ना, इसमें मैंने आपको क्या बताए थे कि क्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट क्लोरीन, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल चाहिए हमको। अभी देखिए इस चीज के लिए हमको H2O क्यों ले रहे हैं, क्योंकि H2O से हमको क्या क्या मॉलिक्यूल मिलेंगे, H2O से हमको किसके मॉलिक्यूल मिलेंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे। H2O में क्या क्या मॉलिक्यूल है देखिए, hydrogen molecule is there and oxygen molecule is there, yes or no? Okay, so that requirement for the hydrogen and the oxygen is fulfilled from what, from the water, okay. And also from the carbon dioxide, what is fulfilled, the requirement for the C6 molecule, carbon molecules is fulfilled from the carbon dioxide, CO2. From the CO2 that carbon molecule requirement is fulfilled. Also some of the oxygen also we are getting from that, from the carbon dioxide molecule, to help us making this CO6। अभी ये जो प्रॉपर केमिकल इक्वेशन बनेगा, इसके बाद कुछ ऑक्सीजन हमारे लिए एक्स्ट्रा रह जाएंगे, कुछ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रह जाएगा, ओके। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रह जाएगा वो सेपरेटली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा, ठीक है, एज O2 मॉलिक्यूल, ओके। अभी इसको केमिकली अगर इसको बैलेंस करने जाएंगे तो इसका बैलेंस इक्वेशन ये बनेगा। अभी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के टोटल कितने मॉलिक्यूल है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 है कि नहीं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। ऑन द अदर हैंड इफ यू सी, ओके, द राइट हैंड साइड, उसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन के 6 + 2 8 मॉलिक्यूल्स। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है, नहीं है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का एक मेथड है, उस मेथड से अगर हम इसको बैलेंस करने जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली दिस इज द रिएक्शन, ये भी हमारा सही रिएक्शन नहीं है, ये हमारा सही रिएक्शन है। तो आपको इस रिएक्शन को याद रखना है कि 6, इसको हम लोग कैसे बताएंगे, विल टेल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड reacts with 6 molecule of water in the presence of light energy, okay, gives 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen. Is it clear to you? Yes, Rudra, I can't understand what you are telling. ये देखिए बैलेंसिंग का है, ठीक है। यहाँ पर जब था ना, यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। देखिए सिर्फ कार्बन को ही ले लीजिए, यहाँ पे कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है, नीचे इसका एक बैलेंसिंग मेथड होता है, ठीक है। मैं अभी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अभी आपके क्लास में उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको हायर क्लासेस में उसकी जरूरत होगी, ओके। इसको कैसे बैलेंस करने के लिए काउंट करना पड़ेगा कि कार्बन के हमको सबसे पहले क्या काउंट करेंगे। इसका जो प्रोसेस होता है स्टेप 1, थोड़ा मैं बता देता हूँ। स्टेप 1 क्या होता है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको देखना है कि सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल क्या है, ये है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही सबसे बड़ा है। तो आप उससे शुरू करेंगे और उसमें आप किसी एक चीज को लेंगे, जैसे कि मैंने उसमें कार्बन को लिया, ठीक है। तो कार्बन को लिया तो कार्बन के 6 है, ओके। अभी तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करने लगेंगे। तो कार्बन यहाँ पर 6 है, तो इस तरफ हमको कार्बन को 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके सामने अगर हम 6 लिखेंगे तो ये
कार्बन कितना हो गया अभी, हो गया ना, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा हमको, करना पड़ेगा कि नहीं करेगा, पड़ेगा। ओके, सिर्फ 12 ही नहीं है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो टोटली 18 मॉलिक्यूल होंगे। तो 18 मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमको 12, हम यहाँ पे 6O2 लिखेंगे, तो 6O2 का मतलब क्या है, नहीं 12, 6 2 12। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल है। ओके, तो 12 यहाँ पे लेंगे और 12 ये जो ग्लूकोज में है ना, ग्लूकोज में इसको 6 कर देंगे, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल आ जाएंगे और यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो टोटली कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, 3। और इस तरफ भी हमारे पास कितना हो गया, 3। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ऐसे करके एक एक करके हमको पूरा बैलेंस करके एक प्रॉपर एक इक्वेशन बनाना पड़ता है हमको। ठीक है, ओके, तो वो आप हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यू रिमेंबर दैट दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किसका इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। ओके, अभी अगर आपको कोई और डाउट है आप पूछ सकते हो, देन विल एंड द सेशन फॉर टुडे। क्लास का नोट्स आगे देखेंगे, लेसन पहले हम लोग जितना खत्म कर सकते हैं कर लेते हैं, उसके बाद लेसन के नोट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 बच्चे प्रेजेंट हैं। ऐसे चल रहा है क्लास हमारा, देखिए। भाई ये लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं है। देखो जब स्कूल में आते हैं तो वो जोर जबरदस्ती बैठते हैं, नहीं तो उनको बैठने का कोई मन भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, आई एम एंडिंग द सेशन फॉर टुडे, विल सी टुमारो। ओके, यस।